Hello everyone. So in this video we are going to discuss article 16, that is third in line to right to equality, right? So first two, that is article 14 and article 15, we already have discussed. So in case if you haven't watched those videos, right, I'll recommend कि आप playlist में जाके right article 14 and article 15 को देख लो. Let us see कि how many articles are there in right to equality. So if you can see on the screen, there are 5 articles starting from 14 to 18, right? So there are 5 articles in this right to equality, right? And these 3 articles 14, 15, 16, right, these are interrelated article, and that's why I was recommending कि आपको 14 and 15 की थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, then only you should proceed to आर्टिकल 16. सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है. लेट अस डेल्व इनटू आर्टिकल 16. तो इसको डील करने का अप्रोच क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आर्टिकल 16 को ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, देन आर्टिकल 16 के थोड़ा सा डीप में जाएंगे, एंड देयर आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन, राइट, जो कि आर्टिकल 16(4) का पार्ट है, राइट. तो इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, राइट, हाउ वाज इंदिरा साहनी केस, राइट, उससे पहले जो मंडल कमीशन वगैरह जो आया था उसकी रिकमेंडेशन, राइट, देयर आफ्टर नागराज केस. तो किस तरह से रिजर्वेशन का इवोल्यूशन इंडिया में हुआ है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो थोड़ा सा ये वीडियो माइट बी लेंदी हो सकता है, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. So let us move to the next slide and article 16 को डिस्कस करते हैं, right? So article 16 को पहले स्लाइड पे हम लोग एक बार ब्रॉडली डिस्कस कर लेते हैं. There are 6 clauses that you can see on the screen, right? So 16, 1 and 2, right? It has a common thread. तो इसको एक कैटेगरी में डाल देंगे, जैसा कि जो अप्रोच हमारा आर्टिकल 15 पढ़ते टाइम रहा, सेम अप्रोच विल अडॉप्ट, बिकॉज वहां भी 6 आर्टिकल्स थे, 6 क्लाउजेस थे, और यहां भी 6 क्लाउजेस हैं, राइट. एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज टू, व्हाई वी आर सेइंग कि दो तरह से कैटेगराइजेशन करेंगे. Clause 1 and clause 2 has some common characteristic because it is extending you fundamental rights, and these 4 clauses 3, 4, 5, 6, right, it is nothing but exemptions to the fundamental right that has been extended in these 2 clauses. That's why these 4 articles, 4 clauses we will read separately, and these 2 clauses will read separately, right. So let us see what 16(1) talks about. 16(1) talks about equality of opportunity in matters of public employment. ये डिस्कस करने से पहले दो चीजें मैं नोटिस आपको करवा दूं. The first thing is that this article, like article 15, is available only to the citizens and not to the foreigners, unlike article 14, right. And this article is protected against state action alone. So 2 notable features: one, that this article is available only to the citizens because public employment किसी foreigner को provide करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं हो सकती, right. And this article is talking about public employment, right. So I hope कि ये दो notable feature आपको clear हो गए होंगे. Moving to clause 2. So clause 2 is nothing but it describes कि किस किस ground पे discrimination is not allowed, right. So 15(2) अगर आपने पढ़ा है तो in 15(2) there were 5 grounds on which discrimination was not allowed. RRCSP, religion, race, caste, sex and place of birth. And उस 5 में आप 2 और ग्राउंड्स ऐड कर दीजिए, दैट इज प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेंट, राइट. सो देयर आर 7 ग्राउंड्स इन दिस आर्टिकल. हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में जब डिस्कस करें. तो देयर आर 7 ग्राउंड ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन अंडर दिस आर्टिकल इज नॉट अलाउड, राइट. सो दीज 2 clauses are extending you fundamental rights, and these 4 clauses are nothing but exception कैसे, ये हम लोग देखते हैं, राइट. सो थर्ड क्लाउज 3 को अगर देखो तो पार्लियामेंट हैज पावर टू मेंशन रेजिडेंस एज कंडीशन इन सम काइंड ऑफ सर्विसेज. और ये किस लिए किया गया, राइट, ये इसलिए किया गया कि भाई रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, महाराष्ट्र में सपोज मराठवाड़ा रीजन है, राइट, तो वो काफ़ी डिप्राइव्ड रीजन है, एग्रीकल्चरली काफ़ी वहाँ ड्रॉट की सिचुएशन अक्सर, तो वहाँ अगर कोई कंपनी इस्टेब्लिश होती है, कोई एमएनसी या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी, राइट, सो टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दैट एरिया अलोन, पीपल ऑफ दैट एरिया अलोन, दिस रेजिडेंस एज कंडीशन. एंड माइंड यू, ये जो पावर है ये पार्लियामेंट के पास है ओनली, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, राइट. सो आपने पहले कहा कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे या डिसेंट के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, एंड हियर यू आर एक्सटेंडिंग दिस राइट टू पार्लियामेंट कि रेजिडेंस एज अ कंडीशन कुड बी कंसीडर्ड, राइट. सो दिस इज नथिंग बट वायलेशन, बट चूंकि आपने इसी आर्टिकल में ये चीज ऐड कर दी है एक क्लाउज में, so that will not be considered as violation of this article, right, because and this will be considered now exception,
and not the violation, right? That's why I was calling कि these four clauses, similarly आप देखोगे 4 और 5, 6 में भी ये exemption जो है किसी न किसी ग्राउंड पे mentioned है. So let us read 16.4. So 16.4 talks about provision of reservation, and reservation most of time जो होगा कास्ट बेसिस पे होगा, ऑल्दो क्लास बेसिस पे भी है, लेकिन SC ST को जब आप दे रहे हो तो कास्ट बेसिस पे दे रहे हो, राइट? बट हियर यू हैड टोल्ड इन द 16.2 जब ग्राउंड्स हम बात कर रहे थे कि कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा, बट बिकॉज आपने इसी आर्टिकल में एग्जम्पशन मेंशन कर दिया, सो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वायलेशन ऑफ 16.2, राइट? सिमिलरली 16.5 अगर देखें तो प्रोविजन ऑफ डिनोमिनेशन हेड बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक ग्रुप, राइट? आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन, सपोज रामकृष्ण मिशन का है, राइट? तो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई हमारा जो हेड होगा दैट विल बिलोंग टू आवर ग्रुप ओनली, राइट? सो देयर राइट अंडर 26(2), राइट, दैट इज प्रोटेक्टेड, राइट? सो या फिर शाही इमाम ऑफ जमा मस्जिद, यू कैन नॉट से कि रिलीजियस ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, एंड हिंदू शुड आल्सो बी एलिजिबल टू बी इमाम ऑफ शाही दैट जमा मस्जिद, राइट? सो बट यहां आपने 16.2 में क्या बोला था कि रिलीजियस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन यहां आप राइट इस तरह का एक्सटेंड कर रहे हो, सो दैट कैन बी कंसीडर्ड वायलेशन ऑफ 16.2, राइट? द 16.5 कैन बी कंसीडर्ड बिकॉज रिलीजियस बेसिस पे आप राइट्स एक्सटेंड कर रहे हो, बट बिकॉज इसी आर्टिकल ने अगेन आपने मेंशन कर दिया, सो दिस विल नॉट, बिकॉज दिस विल बी नाउ कंसीडर्ड अगेन एग्जम्पशन. मैं रिपीटेडली आपके रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में कंप्लीटली ये चीज बैठ जाए, राइट? सो आई होप कि आपको क्लियर हो. देन आर्टिकल 16.6, राइट, ये जस्ट रिसेंट एडिशन है 103rd अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज पास्ड इन दिस 2018 इटसेल्फ, राइट? तो उस टाइम रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ऐड किया गया. सो आई होप कि आपको ब्रॉडली हमने डिस्कस कर लिया है, एंड ब्रॉडली एक बार इसकी जो मैपिंग है वो माइंड में बैठ गई है, राइट? तो इसको याद रखने का फिर वही अप्रोच होगा जो 15 में हमने लिया था कि इन दोनों क्लाउजेस को, बिकॉज दीज आर एक्सटेंडिंग फंडामेंटल राइट, तो एक साथ याद रखेंगे, और इन 4 क्लाउजेस को एक साथ इनको बोल सकते हैं कि वीकर सेक्शंस के लिए, राइट, जॉब्स में रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो इसमें एक्सटेंड किया गया है, राइट? 15 में जो 4 क्लाउजेस थे नीचे वाले 3, 4, 5, 6 वो मेनली डील कर रहे थे एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, राइट? हियर ये जॉब में एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, राइट? सो इन दोनों को एक साथ याद रखना है और इन चारों क्लाउजेस को, राइट, एक साथ याद रखना है. सो आई होप कि मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया है आपको, राइट? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट? और अब थोड़ा सा डीप में इनको डिस्कस करते हैं. तो 16.1 इफ यू से, राइट, 16.1 अगर आप रीड करो और स्क्रीन अगर आपको पूरा दिख रहा है तो 16.1 टॉक्स अबाउट देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू employment or appointment to any office under state, right? So the two keywords, that is equality of opportunity, you need to ensure. You means state, right? And to whom? To all citizens, not to the foreigners, right? So public employment के लिए या public appointment जब आप consider कर रहे हो तो you shall ensure, you as a state shall ensure equality of opportunity, ठीक है, एंड ओनली टू द सिटीजन्स, राइट? सो लेट अस मूव एंड डिस्कस 16.2. सो 16.2 जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि देयर आर 7 ग्राउंड्स, राइट? दीज 7 ग्राउंड्स, राइट, दैट इज मेंशन्ड हियर, राइट? तो इन 7 ग्राउंड्स पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. सो आई होप 16.1 एंड 16.2 आपको क्लियर होगा. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी कि अगले जो 4 क्लाउजेज हैं 16.3, 16.4, 16.5 एंड 16.6 वो क्या डिस्कस करते हैं. सो दिस इज 16.3 एंड it says कि nothing in this article shall stop state from prescribing that employment or class of employment under state or UT or local government will have mandatorily have residence as condition, right? We already have discussed कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए इन सर्टन रीजन जो कि बहुत डिसएडवांटेजेस रह गए हैं, राइट? सो उनके बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए पार्लियामेंट डज होल्ड दिस पार्क योर रेजिडेंस मैंडेटरी कंडीशन मेंशन कर सके किसी एम्प्लॉयमेंट या क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट? सो आई होप कि 16.3 जो है, राइट, वो क्लियर है. लेट अस मूव टू डिस्कस 16.4, राइट? एंड 16.4 मेनली डील्स विद द रिजर्वेशन, राइट? रिजर्वेशन टू SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटी एंड OBC एंड अदर क्लासेस, राइट? सो लेट अस सी क्या है. सो मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन
of appointment in favor of backward class of citizen, right, which in opinion of state is not adequately represented. And when we are talking about backward class of citizen, mind you that it does include SC and ST as well. Often when we talk about backward classes, right, most of time it is taken as कि we are talking about OBC because वहाँ भी backward है और यहाँ भी backward है. But mind you कि whenever we are talking about, because backward class जो है वो constitution में defined नहीं है, right? And that's why backward classes की जब हम लोग बात करते हैं, that will include SC and STs as well, right? And one more thing, that this power of center or state, right, is discretionary power, right? Reservation आप claim नहीं कर सकते. Yes, once it has been extended, then you can claim कि हाँ, it is my constitutional right, right? But as long as it has not been extended through some acts, because mind you यहाँ क्या ये बोल रहा है, nothing in this article shall stop state from, right? Means state की ये discretionary power है, राइट. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि भाई वो एक्सटेंड करें ही करें. हाँ, सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन एक्सटेंड की जाती है, ठीक है, ताकि एक एडिक्वेट लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहे. बट अगेन द सेम रिपीटिशन आई विल डू कि यू कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट, राइट. आर्टिकल 32 का आप रिकोर्स नहीं ले सकते कि भाई मुझे रिजर्वेशन एक्सटेंड माई कम्युनिटी, राइट, या माई रिलीजन हैज़ नॉट बीन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड अंडर सम स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, राइट. सो दिस हैज़ टू डू विद वायलेशन ऑफ माई 16(4) आर्टिकल, राइट. एंड आप आर्टिकल 32 का रिकोर्स लेके सुप्रीम कोर्ट, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. दिस इज अ डिस्क्रिशनरी राइट ऑफ स्टेट, राइट. तो 16(4) का जो इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, राइट, ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट. सो 16(3), 16(4) आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. लेट अस मूव टू 16(5) एंड 16(5) टॉक्स अबाउट कि अगर स्टेट कोई लॉ लाती है, राइट, जो कि ये कहता है कि किसी रिलीजियस कम्युनिटी का हेड जो है या किसी डिनोमिनेशन का हेड will belong to a particular caste or particular religion, so that will not be considered as violation of 16(2), जिसमें ग्राउंड्स दिए गए हैं कि रिलीजियस और कास्ट ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बिकॉज दिस राइट अगेन इज प्रोटेक्टेड बाय 26(2) as well. Because this right, mind you, is protected by Article 26(2) as well. Religious right to religion जो right है, right, उसमें religious denomination को administer करने का, अपने religious institution को administer करने का right दिया गया है, right. तो the same argument that we had used कि शाही इमाम जो है जमा मस्जिद का, right, he cannot be Hindu, राइट, ही विल हैव टू बी मुस्लिम, राइट, और उसको आप रिलीजियस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कंसीडर कर सकते. तो आई होप कि 16(5) भी आपको क्लियर हो गया होगा. 16(6) इज एन रिसेंट एडिशन इन 2018, राइट, और इसने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% जो रिजर्वेशन है, राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट, सो वो एक्सटेंड किया हुआ है. सो दिस इज 16(6). सो आई होप कि ब्रॉडली आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं. So now let us move to discuss this 16(4) in detail, right. So 16(4) is nothing but reservation का किस तरह से evolution over a period of time हुआ है, right, over a period of time. This although 2018 में भी कुछ चेंजेस आए हैं, बट वो मैंने मेंशन नहीं कर पाया, राइट, बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम एंड पॉसिटी ऑफ स्पेस, राइट. तो वो वर्बली आपको बता दूंगा. अभी देखते हैं 1990 से क्या हुआ है, राइट. सो SC एंड ST कम्युनिटी को जो है रिजर्वेशन, राइट, दैट started from very inception of constitution, right. So उनको उसी टाइम से मिल रहा है. Here we are concerned about OBC, other backward classes, right. So 1990 में आप देखोगे मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे VP सिंह की गवर्नमेंट जो है 27% रिजर्वेशन एक्सटेंड करती है अदर बैकवर्ड क्लासेस को, राइट. That leads to widespread protests, right, of high. So that leads to widespread protest of higher caste, right, and recognizing their protest in 1991 you will see कि नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट है, right, along with this 27% to the OBC, they extend 10% additional reservation to economically weaker section belonging from higher caste, right. Come 1992, right, so you have this famous Mandal case which is alternatively also called
इंदिरा साहनी केस, राइट। सो उसके अराउंड 12 to 14 नोटेबल फीचर्स हैं, नोटेबल जजमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन इस केस में है, राइट। बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम एंड पॉसिटी ऑफ स्पेस मैंने सारी चीज़ें नहीं डाली हैं, राइट। फ्यू नोटेबल, मोस्ट नोटेबल फीचर्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आई हैव पुट अप हियर, राइट। सो सबसे पहला जो फीचर था, सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था, यू विल सी कि जो 10% EWS को जो रिजर्वेशन एक्सटेंड किया था नरसिम्हा राव ने, राइट, वो स्ट्राइक डाउन करती है एंड 2 ग्राउंड्स बताती है कि सोशली एंड एजुकेशनली अगर कोई कम्युनिटी या कास्ट बैकवर्ड है, ओनली देन रिजर्वेशन कैन बी एक्सटेंडेड एंड बिकॉज these higher classes, these higher castes, right, they are not socially backward, they may be economically backward, but they are, the criteria is not only economy, you will have to take this social and educational factor both into account, right, on those two accounts, on those two front, higher castes are not eligible for this kind of reservation. So 10% EWS का जो रिजर्वेशन है वो स्ट्राइक डाउन करती है। सेकेंड जो काम करती है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन होता है कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट प्रोपागेट करती है कि दोज बिलोंगिंग टू द OBC, राइट, उनमें भी कुछ प्रोस्पेरस जो हैं क्लासेस हैं, राइट। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जाता है कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर इनकम, राइट, जो भी पर्सन है उनको ये रिजर्वेशन, ये 27% जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलना चाहिए, राइट। रिजर्वेशन इन प्रमोशन यहाँ था, ठीक है, उसको स्ट्राइक डाउन बोलती है कि भाई ओनली इन इनिशियल स्टेज, दैट इज अपॉइंटमेंट स्टेज में आप रिजर्वेशन एक्सटेंड कर सकते हो, प्रमोशन में एक्सटेंड नहीं होगा रिजर्वेशन, राइट। देयर आफ्टर कैरी फॉरवर्ड सीलिंग ऑफ 50%, राइट। तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि 1970, 1980 में जो भी सीटें रिजर्व SC ST कम्युनिटी के लिए रखी जाती है, मोस्ट ऑफ टाइम, सपोज अभी कितनी वैकेंसी, सपोज 750 वैकेंसी सिविल सर्विसेज में अभी निकली हैं, राइट। सो से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कि 85 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC कम्युनिटी और सपोज 75 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC कम्युनिटी, लेकिन उस टाइम में बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन वाज नॉट दैट हाई, लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स वाज नॉट सो हाई, सो वो 75 सीट या 80 सीट जो भी उनके लिए रिजर्व की जाती थी वो फुलफिल हो ही नहीं पाती थी, राइट। सो रिजल्ट क्या होता था कि उन सीट्स को उस कम्युनिटी के लिए अगले ईयर्स के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता था, फिर अगले साल भी फुलफिल नहीं, नेक्स्ट अगले साल। सो एक स्टेज ऐसा आया व्हेन यू विल सी कि जो पूरी पोस्ट निकलती थी, सपोज किसी ईयर में 1000 या 1200 पोस्ट निकली है, राइट। सो यू विल सी कि बिकॉज ऑफ कैरी फॉरवर्ड देयर वुड बी 400 और 500 सीट जो कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही रिजर्व हो जाती थी, राइट। सो उस कैरी फॉरवर्ड के रूल को, राइट, सीलिंग को 50% करने को बोला कि भाई ठीक है, कैरी फॉरवर्ड आप करते रहो, बट किसी भी पर्टिकुलर ईयर में ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि रिजर्व्ड जो सीट है वो मोर देन 50% हो जाए, राइट। और जो ये कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो मैक्सिमम 3 साल तक कर सकते हो, ये नहीं कि भाई बैकलॉग को कवर करने के लिए आप 10 साल तक चलते हो, बिकॉज अगर 10 साल तक आप चलते रहोगे तो यू विल सी कि 90% of the seat will belong to reserve category only. So carry forward rule was limited only for 3 years, right, and 50% की सीलिंग लगा दी। जो चौथा नोटेबल फीचर है कि रिजर्वेशन जो है नॉट मोर देन 50%, ऑल्दो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, अर्जेंट सर्कमस्टांसेस में ये रूल जो है वायलेट किया जा सकता था, बट गवर्नमेंट्स वर सजेस्टेड कि इस रूल को आप लोग वायलेट नहीं करोगे। नाउ ये बहुत हार्श प्रोविजन है, राइट, और पॉलिटिकल सिचुएशन जो उस टाइम थी, उस पॉलिटिकल सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करते हुए यू विल सी ये 1995 में 77th अमेंडमेंट लाया जाता है एंड 77th अमेंडमेंट से जो ये वाला जो रिजर्वेशन इन प्रोविजन प्रमोशन का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था उसे नलीफाई करके लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट ये बोलती है 16(4) में एक एडिशनल एडिशन होता है 16(4)(a) which will empower state to have promotion, to have reservation in promotion as well through this 77th Amendment Act in 1995, राइट। फिर एक और फीचर था कैरी फॉरवर्ड वाला जो कि 50% रूल को वायलेट नहीं कर सकता था, तो उसको इवेड करने के लिए यू विल सी कि 81st अमेंडमेंट आएगा इन 2000, राइट, और उसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को जो इवेड करना था उसको कैसे इवेड किया गया, उसको बोला गया कि नेक्स्ट ईयर जब भी हम इन सीट्स की को कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम एक सेपरेट क्लास बना देंगे, राइट, उसको हम नेक्स्ट ईयर की जो रिक्वायरमेंट है वैकेंसी है उसमें ऐड करेंगे ही नहीं, राइट। तो जो 50% वाला रूल है वो वायलेट होगा ही नहीं,
राइट और उसको अफेक्ट में लाने के लिए 16 में आर्टिकल 16(4) में 4B ऐड किया गया, राइट। सो यू सॉ दीज टू अमेंडमेंट्स, जिसने इनके दो जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस में था उसको नलीफाई किया, राइट। कम 2006 नागराज केस, राइट, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी ऑब्जर्वेशन देनी थी कि व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ कंसीडरिंग एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट फॉर द रिजर्वेशन। सो उसने 3 पैरामीटर्स दिए कि सबसे पहला पैरामीटर की एफिशिएंसी इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 335, राइट। द सेकेंड इज कि कम्युनिटी शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बोथ, ठीक है, बैकवर्ड होनी चाहिए। एंड द थर्ड क्राइटेरिया वाज दैट इट शुड नॉट बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, राइट। एंड ये जो थर्ड क्राइटेरिया इस केस में इवॉल्व हुआ कि दैट कम्युनिटी शुड नॉट बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ओनली देन यू कैन एक्सटेंड, राइट, और इन 3 पैरामीटर्स को, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टेट्स को बोला गया कि अब जब भी आप किसी कम्युनिटी को SC या ST या कुछ भी डिक्लेयर करने का इंटेंशन एक्सप्रेस करते हो, उससे पहले आप क्वांटिफाइबल डेटा लाओ टू प्रूव दैट दैट पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, राइट। उसको 2018 में एक केस आया था और उस क्वांटिफाइबल डेटा के रिक्वायरमेंट को नलीफाई किया गया है अभी। एंड नाउ स्टेट्स जो हैं वो उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि वो अगर SC या ST या किसी भी कम्युनिटी को अगर SC ST में ऐड करना चाहते हैं OBC में, तो क्वांटिफाइबल डेटा की अब ज़रूरत नहीं है एज रिक्वायर्ड बाई दिस सुप्रीम कोर्ट केस इन नागराज केस 2006, राइट। उसके बाद 103rd अमेंडमेंट एक्ट भी आपका आ गया है इन 2018 इटसेल्फ, विच रिक्वायर्स कि 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए, राइट। उसकी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, राइट। सो वी सॉ कि रिजर्वेशन का एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1990 और 2018 तक किस तरह से हुआ है, राइट। सो आई होप कि आपको रिजर्वेशन किस तरह से इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्लियर हो गया होगा। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस आर्टिकल 16. इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन this article or for that matter any issue of polity, Indian polity, you can ask me in comment section. I'll be happy to reply you. Thank you. Bye bye.